अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना, एवरीवन विल थिंक आप सही बोल रहे हो, बस आपका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है। आज जितनी भी आप VFX की बातें कर रहे थे ना, वो मैंने पिकअप कर लिया है। नेक्स्ट टाइम कोई मुझसे पूछेगा, हाँ दीज सॉफ्टवेयर्स राइट, oh you're getting into graphics and VFX and all, you should get the Ryzen processor even though I know nothing about it and we let it go, right? हम अपने दिल पे पत्थर रख के we let it go fine that इसके बाद कोई ROI नहीं है इसका, डूब गया पैसा। सेम चीज आप रिलेशनशिप में अप्लाई करो। तो फिजिक्स इज योर थिंग राइट? दैट्स बायोलॉजी। फिजिक्स इज जस्ट एडिशन। फिजिक्स से डराने के लिए लोग फिजिक्स के 2 टर्म बोल दो, वो क्वेश्चन ही भूल जाए सामने वाला। I didn't mean that मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन चल रही है कि somehow my car would skid and it would go into the water and then I won't die drowning, I would die of a heart attack of how scared I am of the water. I know fear of rejection बहुत ही sensitive topic है बहुत लोगों के लिए, not just प्यार में rejection but job interviews and things like that. Rejection is not a reflection of your self-worth. Namaste everyone and welcome back to another fresh episode of 3XP podcast. I'm Kunal Raj, CEO founder of KRF Media, and on this episode we had Ayushi Mathur, a certified life coach, NLP practitioner and founder of Peak Better Media Services. NLP practitioner, I am sure you must be wondering kya hai, but we have got it covered, don't worry. And on this episode we talked a lot about relationships, a lot about building brand, content creation, and how she ended up working with the Beer Biceps team and much more. This episode is divided into 2 parts because it was quite a long one, and you are listening to the first part. Enjoy. I saw your profile, you mentioned NLP. It sounded something like illegal substance रहता है भाई, NLP चाहिए okay. क्या है, like what is it? NLP wow, it does actually, the industry, the psychology industry has made NLP like that. They look at psychologists and psychiatrists, they look at NLP like, oh, it's that illegal substance, but it's not. NLP means neuro-linguistic programming. If you break down the word, it means आपके ब्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस में जो भी आप अपने आप को बातें बोल रहे हो, all that can be programmed and reprogrammed with your language. So what you say to yourself and about yourself kind of dictates who you are and what you do in life. That is NLP. बट काफ़ी सुनने में काफ़ी ऐसे खतरनाक लगता है। NLP को हायर करना मतलब सोचने लगेगा कि भाई देखते करंट अकाउंट में पैसे है कि नहीं, सेविंग्स अकाउंट तो भूल ही जाओ। लाइक पीपल कंफ्यूज NLP एंड मोटिवेशनल स्पीकर, वैसा कुछ लिंकेज होता है? नहीं, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ना, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही है। लेमैन को नहीं पता है NLP क्या होता है। जो ऑलरेडी फील्ड में है, जो कोचेस हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्हें पता चलता है वो क्रेडेंशियल देख के, ओके दिस पर्सन इज ट्रेन्ड इन NLP। अदरवाइज तो the videos I put out, the content that I do, the talks that I do, workshops that I do, उसके basis पे then people invite me as a speaker. So there's no confusion there. Before we dive in ना, मेरा एक केस है, like my personal case, right? Sometimes मेरे को ऐसे मूड होता है किसी से बात करने के लिए in a flow, then I'll talk like 1 लोग से 5 लोग से 10 लोग से. Sometimes I don't feel like talking, so I won't talk to my loved one also. So is there any category for that problem? Not really. तो if I'm in a mood to talk ना, अगर मैं 1-2 लोग से talk किया, I'll get in that zone कि मुझे और बात करना है, तो मैं सोचता हूँ कि ये मोमेंटम जाने से पहले और 2-3 लोग से हालचाल पूछ ही लेता हूँ। No, that happens with all of us. ठीक है, especially creatives, क्योंकि आप creative field में हो, तो a lot of times you're filled with solid ideas that you want to discuss with people, you want to soundboard with people, कि हम आपस में कुछ discuss करके you will feel better, right? Sometimes you want to go inward. Now I just want to be with myself, my thoughts, and that's when you go inward and you don't want to be disturbed. Consciously आपको पता नहीं होगा that I don't want to be disturbed, but उस समय मन करेगा यार कोई बात ना करे मुझसे। So there's nothing wrong with that. Like अभी हम podcast record कर रहे हैं ना, I will feel like let's record 2-3 podcast this week. In one go. Next week मेरे को बात ही नहीं करना है किसी से। क्यों बात करो, मेरे को बात ही करने का मन नहीं है। That's the thing about momentum. ये मैं सबको बोलती हूँ, अपने जितने भी मेरे coaching clients भी हैं या my teammates and all, whenever they are trying to start something new, वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं आ रही, कुछ स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा। आई टेल देम, एक चीज़ स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल बी इन दैट जोन कि ओके चलो ख़त्म कर देते हैं अब बाकी चीज़ें भी। यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। फिजिक्स का वो लॉ नहीं है इनर्शिया वाला,
an object in motion wants to stay in motion, and an object which is static, which is stationary, wants to stay stationary. That applies to humans. अच्छा, थोड़ा 12th का फिजिक्स सुन के थोड़ा डर लगने लगा. तब मेरे को अपना एग्जिस्टेंस क्राइसिस लगा था मेरे को 12th में फिजिक्स का जब बुक ओपन किया था. सच दैट इज समथिंग दैट रियली स्कैर्ड मी इन 12th. Physics? कुछ पढ़ाते ही नहीं थे, मतलब बोलते थे जब करो यू ऑल गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड यू डू वैसा. अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स रहते हैं ना, विल सेगवे टू समथिंग. बेस्ट सेलर्स आइटम्स या कुछ भी रहता है. व्हाट आर द बेस्ट सेलर्स sort of questions what you get? Top questions. The questions that I get asked again and again. For as a life coach. Oh, from my clients, जैसा आपने मुझे अभी पूछा ना, और मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के लोगों का. People keep asking me, hey, I do this. Is it okay? Is this normal? Like people feel that there's so much wrong with them. And I feel really bad कि यार हम सबके साथ कुछ ना कुछ wrong है. हम सब रोते हैं, हम सब स्ट्रेस होते हैं. तो आप खुद को ऐसे लेबल मत करो ना, क्यों कर रहे हो? तो दैट एवरी क्लाइंट ऑफ माइन आस्क्स दिस, दैट मैं ये गड़बड़ कर रही हूँ, वो कर रहा हूँ, इज दिस ओके? नहीं, मतलब करना चाहिए ना, तो आपका कैसे चलेगा काम? नहीं, आप ये सोचो कि आपके साथ भी प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स है, हम सब फ्लॉड हैं. ऑल ऑफ अस आर फ्लॉड, राइट? दैट इज द होल पॉइंट. लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो मैंने आयुषी को लोग याद नहीं करेंगे ना. तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में रहता है. इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव कोचेस. हाँ, व्हाट आर द कोर थिंग्स व्हाट यू डू जस्ट फॉर द ऑडियंस? So under coaching, the core things that I do is communication mainly, and not just communication. जब आप communication बोलते हैं कुछ coaches and all, तो they think public speaking and doing things like this. How to improve ये तो English है. or something. हाँ, ये तो है, ये तो basic है. But I do a lot of interpersonal communication. तो आप अपनी टीम से कैसे बात करो, आप अपनी पार्टनर से कैसे बात करो, आई मीन लाइफ पार्टनर से भी, पेरेंट्स से कैसे बात करो. अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, इन आवर कल्चर स्पेसिफिकली, don't know how to communicate their needs and expectations. So that's what I cover a lot in my coaching. We assume कि सामने वाला जान जाएगा. हाँ, ना? कैसे? वो हुडीनी है क्या? वो मैजिशियन है? Fear of judgment, like people see step out करने से डरते हैं ना, तो how do they overcome like that? We all have fear of judgment. क्योंकि हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, when we are kids and teenagers and all, हमारे आसपास के लोग बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, oh that person finds out this will happen. ये जजमेंट हम में भरी जाती है. हम we are not born that way. ठीक है, हम चलना शुरू करते हैं, we keep falling and all that, we don't care what people are thinking, how we're eating and all that. It's built into us while we're growing up. But as adults, especially as people in industries where you want to do something new, you want to try, like when आपने जब ये podcast पहली बार शुरू किया होगा, I'm sure you thought लोग क्या सोचेंगे, right? I put out a podcast, people will be like, तू कौन होता है podcast करने वाला, right? Yeah, it took me like 8 months thinking to start a podcast. 8 months of thinking? Yeah, 8 months. कैसे start करूँ, what I should start, क्या करना है. We did 2 or 3 test episodes. Like one episode we did it on green screen. Then green screen was not going well. Then I did one episode where I took one host who will do it in regional language and I will do it Hindi. But then उसका आवाज़ sounded more of interviewish और मुझे ऐसे casual type चाहिए था. So I got my friends and we did few and then we are doing. So before starting, you tell me, did you have fear of judgment that people will judge you? No, I had कि मेरे को क्या करूँ मैं, कैसे start करूँ, what exactly niche I should catch. Makes sense. Judgment नहीं था क्योंकि before that I had been doing YouTube for more 2-3 years. I used to face people like in Konkani they say कसले वीडियो करता है, in Hindi it is कैसे वीडियोस बना रहा है. From my co-workers and all, like we were 3 people we used to do, so no, not an issue, like used to that. Then where do you face fear of judgment? I don't fear this judgment. I just go on posting. मेरे को डर नहीं लगता उसका judgment. That's it. You've cracked it then. This is where everyone who's listening should reach also. क्योंकि आपने fear of judgment के बारे में पूछा ना, दूसरों को जज करने का तो मौका ही नहीं देते हम. We end up judging ourselves so much before putting out anything. We'd watch our first video that we shot and then we'd be like, कैसा साउंड कर रही है यार, ऐसे कैसे, ये वो लोग सोचेंगे क्या, ये all these questions come in our own head. And when you actually put things out, people love it. People appreciate that. So the judgment is you judging you.
That is more important to get rid of. I think when you see the old videos, you can take inspiration कैसे improve करना है. I remember like you must have surely done this video, right? How to be happy, something like that. किया रहेगा ना? Happiness से related, हाँ. तो मैंने 3 साल पहले किया था How to be happy एक वीडियो, ठीक है. और मैं उसमें उदास लग रहा हूँ. उसमें टेंस लग रहा हूँ मैं. मतलब वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो वो कैमरा के सामने कैसे, तो किसी ने बोला भाई तू ही दुखी लग रहा है कैमरा. तो ऐसा हुआ था. बट देन आई कैन, मतलब वो इम्प्रोवाइज करते हैं ना, लाइक हाउ यू मॉड्यूलेट योर वॉइस और बने कैसे एक्सप्रेशंस रहते हैं, एंड देन यू कम ओवरकम दैट. एग्जैक्टली. तो एवरीथिंग दैट यू वॉच जो आपने पहले कुछ क्रिंज किया हो वो देखने में मजा आता है. बट देन आप अभी 3 साल पहले से आप अभी के वीडियोस देखो अपने, यू विल बी लाइक वाओ ब्रो, कितना ग्रोथ हुआ है. एंड दैट्स द थिंग, राइट? जजमेंट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्शन. वी कैन सी व्हाट वी कैन इम्प्रूव ऑल द टाइम. दैट्स इट. अभी विल गेट टू सम हॉट बर्निंग क्वेश्चंस. आशिकों का सवाल है कि ब्रेकअप हो जाता है कि हाउ डू आई लेट इट गो. हाउ टू लेट गो. या हाउ टू लेट गो, कि पकड़े रहे उस गाड़ी को. अगर छूट गई है कंप्लीटली तो छोड़ दो, ठीक है? मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट इट फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव. आप भी बिजनेस करते हो, राइट? तो आपको ये पता होगा कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं, हम उसमें पैसा तब तक डालते हैं जब तक हमें लगता है कोई स्कोप है रिटर्न आने का. जब हमें पता चल गया ये तो डूबा हुआ इन्वेस्टमेंट है, देन वी लेट इट गो, राइट? हम अपने दिल पे पत्थर रख के वी लेट इट गो. फाइन दैट. इसके बाद कोई ROI नहीं है इसका. डूब गया पैसा, डूब गया पैसा. सेम चीज आप रिलेशनशिप में अप्लाई करो. अगर आपको लग रहा है आपका प्यार डूब गया है, कोई रिटर्न नहीं आना है, तो फिर व्हाट इज द फायदा ऑफ कीपिंग इट, राइट? व्हाट इज द फायदा ऑफ होल्डिंग इट? आप जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ज्यादा ही पेन होगा, दर्द होगा. लेट इट गो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगर कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता दिख रहा है, हो सकती है चीजें इम्प्रूव, तो बैठ के एक बार बात करो यार. टॉक टू द पार्टनर, टॉक टू देम दैट कैन वी वर्क समथिंग आउट, कैन वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स फॉर व्हाटएवर रीजन द ब्रेकअप हैपेंड. अच्छा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, थोड़ा ऐसे याद रहेगा. ये पॉडकास्ट का ये क्लिपिंग टाइम स्टैम्प देखता हूँ मैं, और बाद में रिवाइंड पे देखता हूँ अगर कुछ हेल्प. सब चीज़ें रिलेशनशिप्स को अगर आप बिजनेस की तरह लो ना, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इश्यूज. चश्मा नहीं पहनते हो? नहीं. पॉडकास्ट करना तकलीफ देता है क्या बहुत? नहीं, वो रिफ्लेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना. पावर का है कि स्टाइल के लिए? पावर का है. क्यों पहनूंगा स्टाइल के लिए? you अटेंड इवेंट्स एंड ऑल ना, क्या होता है? To people to take me seriously. Now I look old enough. There used to be retreats and all. मैं 8th स्टैंडर्ड में सुना था retreat, लेकिन मैं गया नहीं, डर गया, पता नहीं था क्या था करके. So you do retreats and all, right? और मेरे को ऐसे पता चला कि it is quite immersive. What exactly it is done over there? retreat की जगह घुमा देते हो, बोलते हो कि नेचर देखो, रिलैक्स करो, नेचर साउंड वहाँ पे चिल्ला दो पहाड़ पे, you'll feel good. नहीं, एक्चुअली retreats, we call ourselves Life by Design, we call ourselves India's first transformational and well-being retreat. And it is, क्योंकि हमने बहुत सारे retreats सर्च किए इंडिया में. वो सारे या तो योगा रिट्रीट्स हैं या वेलनेस रिट्रीट्स हैं, कोई एक टाइप के रिट्रीट्स हैं. बट इट्स मी एंड 2 other coaches, life coaches, right? तो when people come to our retreats, we transform them internally and externally. तो बहुत सारे इमोशनली इमर्सिव एक्सपीरियंसेस कराते हैं हम. लाइक वील डू व्हील ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ लाइफ, ये सारी कोचिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हम साथ बैठ के करते हैं. एंड यू वोंट बिलीव, हमारी जो मई में रिट्रीट हुई थी, day 1, it's the first day they've come together. Everyone's crying, everyone's hugging each other, crying. It gets that emotionally cathartic, you know. And by the time people are leaving, they know how to deal with their life. They know how to tackle the challenges that have come about now. So it's very, very transformational. आपको आना पड़ेगा to actually understand how different it is from everything else. Yeah, but there is one thing, right? Like when people attend sessions and all, they write everything, they do. मन में अगले दिन नहीं होता है, उनसे भूल जाते हो. Exactly, right? तो हम क्या करते हैं, आपने 5 दिन हमारी रिट्रीट अटेंड की, उसके बाद we keep doing accountability calls. Every 15-20 days, we will get on a Zoom call together, then ask each other कि आपने जो goals set किए थे ये रिट्रीट पे, क्या आप उस राह पे हो कि नहीं, उस रास्ते पे हो कि नहीं. And then we've built this accountability within the participants with each other. तो वो सारे ना अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आए थे, बट अपने आपस में दोस्त बन गए. दे कीप मीटिंग, हेल्पिंग ईच अदर एंड ऑल. तो दैट इज
really important, having that accountability. अगर आप उसको कॉल करते हो और वो बोलता है हाँ हम कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे, तो मन नहीं करे तो आपका लॉस है ना. मैं अपने सारे कोचिंग क्लाइंट्स को जिस दिन वो मेरे साथ साइन ऑन करते हैं मैं बोलती हूँ काम करना है तभी यू आर गोना बी माई क्लाइंट, अदरवाइज आई विल फायर यू, राइट. इट्स नॉट दैट यू कांट फायर मी. अगर आप जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो पूरा हफ्ता हमारी कॉल्स के बीच में आपने प्रैक्टिस नहीं किया, डोंट कम बैक टू मी. यू हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट. आपका नंबर ब्लॉक किया जाएगा मत. आपका लॉस हुआ जो आए, नो रिफंड, प्लीज डोंट आस्क फॉर. हाँ, नो रिफंड. आई से दैट कि आपने काम नहीं किया ना. यू वांट टू चेंज योर लाइफ और नॉट. हमने आपको इतना अच्छा स्टे दिया, इतना रुलाया, फिर भी आप हमें दोषी कर रहे हो, नहीं कर सकते सर. टॉकिंग अबाउट फोमो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, योलो, फोमो एंड स्टफ. वो स्लैंग चलता था, मुझे पता नहीं था फोमो था, तो फोमो फोमो कहते थे. फ्रॉम माई इंटर्न आई केम टू नो फोमो. बाद में फुल फॉर्म सर्च किया मैंने. You're talking like dad. फोमो क्या होता है? तो बाद में जिनको जो सिंगल है उनको रिलेशनशिप में जाना है फोमो की वजह से, ट्रैवल नहीं करे, घर पे बैठे ट्रैवल करना है. तो हाउ डू दे ओवरकम लाइक दिस, डोंट फॉल इन ट्रैप, बिकॉज ऑफ फोमो देयर आर लॉट ऑफ, जिनको नहीं करना है वो भी कर लेता ना. एंड रॉन्ग डिसीजंस पीपल टेक फोमो की वजह से, राइट. तो यहाँ पे 2 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज आपको ये समझना चाहिए दैट यू आर ऑलवेज मिसिंग आउट ऑन समथिंग. राइट नाउ दैट आई एम हियर टॉकिंग टू यू, आई एम मिसिंग आउट ऑन सम नाइस वाटर एक्टिविटी दैट आई कुड हैव बीन डूइंग, राइट. शी इज मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ बिजनेसेस. अरे यार मेरा 1-on-1 कॉल मिस हो गया 2. you are always going to miss out on something, right? तो आपको अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा that I choose to miss out on that. I'm choosing this. So you're empowering yourself when you tell yourself I choose this today, which is why it's okay to miss out. And we like to call it, amongst our coaches, we call it joy of missing out, JOMO. We have the joy of missing that out. And the second thing is, fear of missing out can also be a very good navigation for you or compass for you, right? जैसा आपने कहा मेरे friends travel कर रहे हैं हर महीने, मैं नहीं कर पा रही, तो at least 3 महीने I can save for the trip I want to take, right? I can tell myself कि action points मैं क्या लूँ so that 3 महीने बाद मैं भी वो कर सकूँ जो वो कर रहे हैं. सब वियतनाम जा रहे हैं इस साल, everyone. मुझे भी जाना है. तो I'm trying to save for it. फोमो सबसे बड़ा फोमो आयुषी को ही है क्या? नहीं, I'm actually looking at it as joy. She travels so much that her 40K followers get FOMO और मैंने वो बोलती है कि FOMO मत रखो guys. मैं उनको बोलती हूँ पैसे बचाओ, चलो ट्रिप पे साथ में चलते हैं. You are the first guest offline from other than Goa I am talking with. I had one from Pune, but that was an online thing. So this is the first guest. So I'm so glad and grateful. We'll talk about business. Pick better, right? Company के बारे में तेरे को pitch करना है इधर. So business point of view, like how do you grow your business as a life coach? तो उसको कैसे navigate करके कैसे grow कर रहा है? Because you have put content all over, ऐसे YouTube, Instagram, website and everywhere. It will be very different from what everyone says today, okay? Because मैंने business start किया था 6 साल पहले. I am very very traditional in business. आपको पता होगा ना, हमसे पहले वाली जनरेशन जैसे बिजनेस करती थी, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई दुकान खोली हुई है, जैसे वो करते थे ना बिजनेस. दैट्स हाउ आई रन माई बिजनेस. आई डोंट रन इट लाइक स्टार्टअप्स. सो आई विल सी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रेवेन्यू अच्छा आ रहा है. वी आर नेवर इन लॉस. So in the 6 years, touch wood, I've never been in loss. I will try different things. I experiment a lot. आपको मेरी फीड से पता चल जाएगा. I experiment a lot और जो चलता है उसी पे फिर हम और एफर्ट डालते हैं, उस पर एफर्ट, पैसा, टाइम सब डालते हैं उसी पे. तो इट्स वेरी ट्रेडिशनल एंड इट्स वेरी गट बेस्ड, मतलब इट्स वेरी इंट्यूशन बेस्ड. तो मुझे अगर सही लगता है कोई डिसीजन, आई विल डू दैट एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी. आई डोंट यूज़ very many formulas, right, that people are coming out with कि अगर आपको business करना है तो ऐसे करो, वैसे करो, AI करो, ये करो. All that I don't do. Very very traditional. One thing that has really helped me is hiring young people. सारी Gen Z team है मेरी, and all of them are so enthusiastic to learn, new skills, take up new skills and take up new roles in the team as well. So no one has just one role. No one's a social media manager only. They also do edits. They also do this and that. Love that. So social media someone else is handling for you? My own I like to handle myself because I like to keep the tone, the way I'm talking, even the captions and all that, very me. But all our clients, so digital marketing agency, right? So all our clients are handled by, some are handled by me, some by my teammates and all. Because I had seen
जब AI आया था ना, तो एक्ट एज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड क्रिएट 10 पोस्ट. वही तो चैट जीपीटी से सब लिख रहे हैं अब, बट ह्यूमन टच ही चला जाएगा वहां से. सब एक जैसा साउंड करेंगे. तो एकदम अचानक से किसी का पोस्ट आ जाता है और हाईफाई एकदम पैराग्राफ वर्ड्स आते हैं जो कभी सुने नहीं. हाँ, ऐसे रियल लाइफ में उनसे मिलोगे, उनको वो वर्ड्स नहीं पता है. स्पेशली लिंक्डइन पे होता है. I got my driving license और मैंने I achieved this and that with all the dedication. वो बड़ा सा पैराग्राफ. That is so true. LinkedIn is all about how can I shine brighter than other people. It's all about कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया. वहाँ पे आर्टिकल्स चलते हैं ना. So you put one image and you write a big story. Yeah. एंड कितनी सारी इमेजेस तो मिलती भी नहीं है वो स्टोरी से. कुछ भी चल रहा होगा, आइसक्रीम खा रहा होगा कोई, एंड इट वुड बी अबाउट बिजनेस. यू नो, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड अबाउट बिजनेस, क्योंकि बहुत व्हेन आई वाज यंगर, राइट, लाइक जब मैं 9th-10th में थी, तब मेरे मॉम डैड ने मुझे ऐसे बैठा के एक सीरियस कॉन्वर्जेशन की कि बेटा अब तो JEE प्रेप में जाना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, नौकरी पकड़नी है, फिर MBA करना है, फिर नौकरी पकड़नी है. दैट होल कॉन्वर्जेशन, राइट. एंड देन थोड़े दिन बाद मैंने उन्हें बिठाया कि देखो आप बैठो और अब सुनो, राइट. तो देन आई टोल्ड देम कि लिसन, मेरे से JEE वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर 1 इट्स वेरी कन्वेंशनल. अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी वर डूइंग दैट इन माई ज़माना, आई वुड से. एंड नहीं हो पाएगा मुझसे. मैं स्ट्रक्चरली काम नहीं कर पाती किसी और के स्ट्रक्चर से. आई पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स. तो फिर मैंने उन्हें पूरा समझाया कि नहीं हो पाएगा. मैं JEE क्लासेस नहीं ज्वाइन करी. आई डू माई बेस्ट इन कॉलेज, बट प्लीज लीव इट टू माई सेल्फ. दे ट्रस्टेड मी, थैंक गॉड. दे ट्रस्टेड मी, थैंक्स टू माई पेरेंट्स. आई डिड दैट, एंड बिफोर आई फिनिश्ड कॉलेज ऑल्सो I started my own NGO. I started a lot of leadership roles I took up before I turned 20 also. So that helped me become a business owner today. तो जितने भी मेरे यंग कजन्स हैं और ये सब ना, उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि ब्रो तू 10th में ना, कोई बात नहीं, स्टार्ट समथिंग. कुछ भी बेचना चालू कर. यू नो हाउ हम इंग्लिश मूवीज में नहीं देखते कि लेमनेड स्टॉल बना लेंगे वो 6-7 साल के बच्चे. सिमिलरली आई रिमेंबर मैं 10th grade में थी. आई मेड पैम्फलेट्स ऑफ नेल आर्ट. आई लर्न नेल आर्ट एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन माई सोसाइटी कि अगर आपको नेल आर्ट करवाना है, मुझसे करवाना, राइट. सो दैट वाज ऑल्सो बिजनेस हसल फॉर मी. ऐसे सिंस आई वाज 14-15 आई हैव बीन डूइंग दैट. And I love that. Have you tried that something? No, I haven't tried. I actually started going in business when I started doing job. जब जॉब करते तो बाद में लगता है ना, अरे कुछ तो करना है. ये हमसे ना हो पाएगा. ये हमसे नहीं हो पाएगा. तो वैसे ही है. Nowadays I see like when the people are in college they start some side hustle. Yeah, I love that. अभी आज के जेनजीज जो है और जेन अल्फा जो आ रही है, उनके पास वो मीन्स हैं यार, क्योंकि वो कॉलेज में है, उनके पास फास्टेस्ट इंटरनेट, चैट जीपीटी, दिस दैट, सोशल मीडिया. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, Instagram was just picking up. People had just started doing Instagram. So I also started then, but कुछ नहीं पता था ना मुझे कि वीडियोस कैसे करते हैं, वीडियो एडिट कैसे करते हैं. Sometimes I feel I wish I started when I was a teenager also. Content में काफ़ी कुछ बदल जाता आज. But better late than never, I guess. Yeah. तो अभी इस महीने what I'm starting is I'm trying new formats. I'm gonna try stepping out of my own comfort zone and do a vlog. I don't know how to do vlogs, but I'll try that. I'll introduce some podcast style things. I shot one with my mom. Just me and my mom talking about all kinds of uncomfortable things. ये सब ट्राई करके देखते हैं, फिर बढ़ गया तो बहुत अच्छा है. टाइटल ऐसे रखेगा, रिवीलिंग माई मॉम. Revealing my mom. Mom reveal, guys. Mom reveal. I have touched 8K now, तो mom reveal, और 40K भी हो गया, तो it's the time guys now. 20K पे dad reveal. I was going through the videos. I discovered your video on Raz. It is a part of the Ranveer show, right? Beer Biceps. Are you still working there, or how is the scenario? Actually, I've been traveling a lot in the last 2-3 months, so I haven't had the time to actually go and shoot in their studio. But I came across them actually back then when I moved to Bombay. I was in Delhi for a few years, then I moved back to Bombay. I hired someone to manage all my work, and they used to follow, you know, Ranveer and Big Brain and all these different channels. And then उन्होंने ऐसे stories डाली थी, we're looking for fresh faces, we're looking for creators and all. And they just like applied, put my details and all. 2-3 days later, I get a call from their HR team, and they're like, hey, do you want to come in for a shoot? And then it just worked out, and then it's been fun. It's been fun shooting with them, because initially I used to get, before it became Raz, it was Big Brain, right?
I used to get very fun scripts like about women empowerment, about science and technology. That is kind of, I'm a nerd that way. I love talking about science. So that was fun. It is very good team they had, very young people. So physics is your thing, right? That's why Biology. Physics is just a addition. फिजिक्स से डराने के लिए लोगों को कि भाई फिजिक्स के 2 टर्म बोल दो और क्वेश्चन ही भूल जाए सामने वाला. I didn't mean that. बट बिग ब्रेन इज राज नाउ. आई डोंट नो. हाँ. चेंज कर दिया क्या उन्होंने? They are focusing more on horror and thriller and all. Any interesting learnings what I can take? Big Brain से मैंने सबसे पहली चीज़ ये सीखी that they have grown so much because they listen to their audience. Their read on analytics, YouTube analytics, and how what is doing, how is it performing is really good. That's why they're in millions now, because they read what people wanted. They got it from the analytics and made more of that, started making more of that. And I love that they did this multiple creator thing so that people don't get bored of the same face over and over again. And everybody brings their own kind of style, storytelling. So that really helps. You so get these that two things. individual audience also, right? Yeah, obviously. Because a lot of people went to watch my videos there from my audience and the other way around also. Very cross-connecting. Yeah. You were asking me about fear of public speaking, right? So obviously video mein baat karna is not technically public speaking, but it is also, it's like digital public speaking. The first video I shot with them, okay, I was so nervous. I was like, मैंने कल ही script पढ़ी है, should I remember all of it? What should I do? I took so many different takes, you know. But the thing I loved the most is that their team, their cinematographers have changed 2-3 times, but they are so patient, okay? I would keep apologizing, oh, I fumbled, I'm sorry, this and that. They're like, it's okay, take your time, as much time as you need. And that behavior made me more confident. And from the next time onwards, I started doing very quick videos, right? So that is very important in any team. आप भी अगर किसी के साथ shoot कर रहे हो, if you can make them feel comfortable and, you know, loved and heard and all that, process becomes very smooth. So I love that. Yeah. We usually, when someone takes more takes, we're like, अरे कुछ नहीं, पूरा दिन है. That is, it just takes that one line, right? Of a happy, suggestion or anything. Even if you have some feedback to give in a very kind way. If you do that, nothing. Yeah. Because if the other person says, then वो और fumble करेगा और बाद में. हाँ, डराओ मत किसी को. चला जाएगा, वो जो बोलने वाला भी था ना, वो नहीं बोलेगा. मैं इधर क्यों आ गया? I am here to share you something really important. So this podcast is powered by KRF Media, a very own media production house where we deal with video production, that is the shoot, video editing, visual effects, 3D, 2D animation, and much more. Adding life to stories is our motto, and if you're curious to know what KRF Media does, what I do, then definitely check out krfmedia.com, or link will be there in the description. Let's jump in the podcast starting in 3, 2, 1. So now we'll talk about, I'll give you some terms like problems and just give me some solution. For example, someone having a low self-esteem. Self-esteem का एक ही आंसर है, मोमेंटम. क्योंकि सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है, राइट? यू आर थिंकिंग आई एम नॉट गुड इनफ. ठीक है, आपको अगर आई एम नॉट गुड इनफ वाली प्रॉब्लम हो रही है तो यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, गिव योर सेल्फ चैलेंजेस, डू थिंग्स जो आपको चैलेंज करती है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर फेंकती हैं आपको लिटरली. एंड देन द मोर यू डू दैट एंड द मोर सक्सेस यू विल गेन, आपकी सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपको पता चलेगा, हे आई एम गुड, आई एम डूइंग दिस वेल. बर्नआउट का ना सब हर कोई एक ये वाला आंसर देता है कि यार टेक मोर ब्रेक्स, गो ऑन वेकेशन, गो आ जाओ, राइट? बट टू बी ऑनेस्ट, व्हेन यू आर रनिंग बिजनेसेस लाइक वी डू, नहीं मिलता इतना टाइम यार ब्रेक्स लेने का. यू हैव टू वर्क. तो तब आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू बी मोर माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. कंसिस्टेंटली बैठ के मत करो. एड अ लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क्स थ्रू आउट द डे. एक ही चीज़ आप बार बार करते रहोगे तो बर्नआउट बहुत ईजीली होगा. ट्राई डिफरेंट इंटरेस्टिंग टास्क्स थ्रू आउट द डे. मिक्स एंड मैच योर टास्क्स. डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ एवरी सिंगल डे. अपने लिए कोई 3-4 नॉन नेगोशिएबल्स बना लो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अस विमेन, स्किन केयर इज दैट नॉन नेगोशिएबल. आधा घंटा बैठ के बस 5-6 लेयर्स ऑफ स्किन केयर कर रहे हैं, राइट? दैट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी. जर्नल कर रहे हो आप, यूर रीडिंग half an hour a day at least. These little mindful activities go a long way. You do journaling? Yeah.
मैं ट्राई करता हूँ, बाद में रात भर मैं भूल जाता हूँ कभी. I keep it on my bed only, all the time. One book and one journal, so that सोने से पहले कितना भी आलस आ रहा हो ना, okay, it's there. I tried like 2-3 days ना. Not like पूरा चीज नहीं, some interesting thing. Because I was listening to one podcast, उसमें किसी ने कहा था कि you just write 1 or 2 interesting thing what happens to you, and then when you're talking you will get lot of stories. Swipe file कहते हैं उसे. दैट्स समथिंग आई डू ऑल्सो. मेरे फ़ोन पे जो नोट्स ऐप होती है ना, उसमें मैंने एक स्वाइप फाइल करके पिन कर रखी है. अगर आपने मुझे कुछ बहुत अभी इंटरेस्टिंग बनाया, राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई राइट दोज कीवर्ड्स इन माय स्वाइप फाइल कि वो कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं. डेड रिवील आएगा इसलिए. डेड रिवील हो जाएगा स्वाइप फाइल में. व्हाट अबाउट फेलियर्स? Failures? Oh, failures are amazing क्योंकि failure doesn't mean end of life or end of your journey, right? I know ये बहुत क्लीशे है, बट जो भी आपका failure आ रहा है वहाँ पे आपको रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है. आप बैठो, राइट? डोंट कीप रनिंग आफ्टर फेलियर. टेक अ कपल ऑफ डेज आउट, लुक बैक, क्या गड़बड़ किया, क्या वो मेरे हाथ में था या नहीं, वॉज इट अंडर माई कंट्रोल, वॉज इट आउटसाइड माई कंट्रोल, what can I do differently? I love this question and I put this in coaching also. What can I do differently moving forward? Love it. Just ask yourself that. Keep asking yourself that. Prior to this, before this, what we are talking about, breaks. How do you manage breaks? Because breaks तो नहीं होता है ना, like even on breaks you are thinking कि क्या करना क्या करना. नहीं, now I've gotten a very good balance. Now I work 2-3 hours a day only. सिर्फ. And break में आई हैव एक्चुअली बहुत मेहनत लगी क्योंकि पहले मैं ब्रेक्स लेती थी. ब्रेक के टाइम पे भी आप काम का ही सोच रहे हो कि ठीक है ब्रेक खत्म होगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे. Yeah, during breaks you think क्या करना है, you know. You with the phone also you'll be thinking. आप फोन पे कुछ टाइप करते रहोगे, सोशल मीडिया करते रहोगे, ये होता रहेगा वो. बट दैट्स नॉट अ ट्रू ब्रेक, राइट? योर ब्रेन इज स्टिल देयर. और आपका ब्रेन 20% एनर्जी खाता है आपकी. दैट मीन्स इफ योर ब्रेन इज ऑल्सो एक्टिव यू विल गेट टायर्ड थ्रू आउट द डे, विच इज़ वाई आपको ना गिल्ट डिटैच करना पड़ेगा ब्रेक्स से कि अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ अभी तो दैट मीन्स आई डिजर्व इट एंड आई डोंट वांट टू अटैच एनी गिल्ट टू दिस ब्रेक. आई विल कम बैक फीलिंग फ्रेश एंड डू माई बेस्ट देन. तो वो यहाँ पे भी फोमो हटाना पड़ेगा कि अगर मैं 5 दिन अभी गोवा में हूँ, मेरे को ये फोमो होना चाहिए था कि इतना कुछ बिजनेस में मिस आउट हो रहा है, लेकिन नहीं, आई डिजर्व दिस, आई एम गोना एंजॉय दिस. बट नाउ सिंस वी हैव अ टीम, राइट, वर्किंग दैट, और कोई बंदा जिसके पास टीम नहीं है तो ही विल बी थिंकिंग ना, अगर मैं रुक गया तो बाद में मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था. फर्स्ट 2 years 3 years of my 2 years of my business I didn't have a team. So I used to have 12-14 hour working days in a day, right? And it was hectic. But then I learned that yes, I enjoy 14 hours working a day, but then it's not sustainable. ये चलेगा नहीं हमेशा. तो then I started giving notices to my client कि देखो next 3 days I am not available. I will use a lot of systems. Again, I use a lot of systems. सब कुछ पहले स्केड्यूल कर दिया, प्लान कर दिया, पहले से काम ख़त्म कर लिया ताकि ये 3 दिन चिल रिलैक्स कर पाएँ. यहाँ पे भी when I'm here also, I'm taking out half an hour, 1 hour a day to just finish and get done with a lot of work. Rest of the day I'm free. तो have systems in place. Ad hoc काम मत करो कि अभी कुछ काम आया तो कर रहे हैं, अभी काम आया तो. इवन अगर कोई क्लाइंट हैंडलिंग में तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको पैसा दे रहे हैं तो दे ओन यू, राइट? दे बी लाइक रात के 12 बजे, बिकॉज माई क्लाइंट्स आर आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, तो एनी टाइम ऑफ द डे दिल बी लाइक, ओ गेट दिस डन, गेट दैट डन. आई वेरी रिस्पेक्टफुली टेल देम कि लिसन, वी गॉट वेरी लिटिल टाइम टू डू दिस एंड दिस इज नॉट इवन वर्किंग आवर्स फॉर अस. वी विल ट्राई वॉट वी कैन डू बेस्ट. दैट्स इट. सो दे देमसेल्व्स फील अपॉलोजेटिक. दे देमसेल्व्स से हाँ ठीक है कोई बात. सुनो, थोड़ा रात हो गई है, मुझे सोना है. अच्छे से बोल रही हो, मान जाओ. ग्राफिक्स चाहिए ना कल. तो यूएस में वैसे ही होता है ना, टाइम रहता है. सेटिंग बाउंड्रीज ना, सेट बाउंड्रीज विद क्लाइंट्स. बिकॉज व्हेन वी वर्क ऑन Fiverr वीडियो एडिटिंग गिग्स ना, we get queries at 12 o'clock, 1 o'clock. So we are active at 12:01 because we miss out otherwise. No, that is okay. आपका तो सिस्टम ही वही है ना. Then you can be lazy at 9 a.m. here. Yeah. That is okay. 10 a.m. 10 a.m. Fear of rejection. Fear of rejection. One thing you have to tell yourself. I know fear of rejection बहुत ही sensitive topic है बहुत लोगों के लिए. Not just प्यार में rejection, but job interviews and things like that. You have to remind yourself of 2 things. Number 1, रिजेक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ वर्थ. आप रिजेक्ट हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हो या फिर यूजलेस हो.
राइट? आप रिजेक्ट हो गए तो दूसरी चीज आप ये याद रखो कि क्यों हुए. अगेन रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू. क्या कमी थी मुझ में? व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली? व्हाट कैन आई डू बेटर? राइट? एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स रिजेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि यू वर लुकिंग, द कंपनी और द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स एंड यू आर नॉट दैट पर्सन. डजंट मीन यू आर नॉट गुड इनफ. इट्स जस्ट डिफरेंट. समटाइम्स कंपनीज लुक फॉर लाइक वन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज और आपका लाइक नहीं है तो देन इफ फिलहाल मैं रिजेक्ट हो गया, ओ माय गॉड. हाँ, रिजेक्शन को ऐसे लाइफ एंडिंग मत समझो ना. दैट इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ वर्थ. यू आर गुड एंड यू कैन ऑब्वियसली, वी आर ऑल वर्क्स इन प्रोग्रेस. वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, राइट? Not a reflection of self-worth, right? Quote by Ayushi Mathur. Note it down, guys. Okay, overthinking. Overthinking, ये I love this topic. क्योंकि मैंने अपने लिए एक फॉर्मूला बना लिया है. जब भी मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, आपको ये पता चलेगा 80% ऑफ द टाइम आप ओवरथिंक करते हो किसी दूसरे से रिलेटेड. कि यार मेरी मॉम क्या सोच रही होंगी, राइट? माई पार्टनर व्हाट ही इज थिंकिंग. मैंने ऐसा कर दिया तो वो क्या सोच रहा होगा. यही ओवरथिंक करते रहते हैं हम दूसरों से रिलेटेड. इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग एंड गिविंग योर सेल्फ स्ट्रेस, दूसरों को दो ना. That means that you go up to them and ask them कि bro, listen, I'm overthinking about this. Is this true? And then most of the time you will get the answer. अरे क्या सोच रही है ऐसा तो मैं I'm not even thinking that way. So if you're overthinking, go and ask the other person directly. Don't waste your time, their time in making up assumptions and all. And if you're overthinking about something that is related to just you, your work or your health or anything like that, get out a planner, write down things, what's in my control, what's not in my control, and जो भी आपके कंट्रोल में है उस पर प्लान बना लो, उस पर काम करना शुरू कर दो. फिर थिंकिंग का स्कोप ही नहीं बचेगा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बिफोर वी गो टू मोर 2 or 3 टर्म्स, पीपल माइट बी अज्यूमिंग ना जो मोटिवेशनल स्पीकर और जो NLP है उनका लाइफ तो सॉर्टेड है बिकॉज नहीं, वही आई वाज टेलिंग यू ना, वी आर ऑल वर्क्स इन प्रोग्रेस. तो पहले मैं आपको बता रही थी, राइट, दैट इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव कोचेस. इवन आई गेट कोचिंग फ्रॉम अदर कोचेस. क्योंकि ठीक है, प्रॉब्लम्स भले ही चेंज हो गए होंगे, वो वाली नहीं होंगी जो मुझे 2 साल पहले 3 साल पहले ट्रबल करती थी. प्रॉब्लम्स थोड़ी सी एलिवेट हो गई हैं. प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है ना. For example, this year my biggest problem is how can I make more money? At this age, I want to be making more. Evergreen problem, right? I mean, right? Yeah. Sometimes you can be happy. Like last year, I was happy with how much money I was making. But now a lot of life changes are coming. So I want to be making more money. That is a problem. And instead of letting it control my life, कि इतना ही स्ट्रेस हो जाए कि जो आज भी है मेरे पास वो भी इंजॉय ना करो. I work with coaches कि help me out bro, like how can we do this, how can I do things that will help me grow. तो प्रॉब्लम्स तो आज भी हैं और वो रहेंगी हमेशा. आप कितने बड़े सेंट भी बन जाओ, राइट, यू बिकम अ मंक, यू बिकम हूएवर, प्रॉब्लम्स रहेंगी. कीप वर्किंग ऑन देम. द थिंग इज कि हर पिछले 6 साल से, जैसे मैंने कहा, बिजनेस रन कर रहे हो, राइट, तो बहुत सारी आपको ऐसी करेजियस चीजें करनी पड़ती है जिसमें आपके पास टाइम ही नहीं होता और जगह ही नहीं होती कि आप डर सको, राइट. यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग थिंग्स वन आफ्टर द अदर. बट yesterday, being in Goa, I wanted to tell you, कल I was driving back at midnight from Panjim to Candlem side, and वो बड़े बड़े ब्रिजेस जो हैं वो तो है ही, बट हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और हम एक ऐसी रोड पे आ गए विच वॉज कम्प्लीटली पिच डार्क और दोनों तरफ पानी. एंड आई डोंट, आई हैव नेवर कम टू दिस रोड, राइट, एवर. आई ड्राइव सो मच इन गोवा. व्हाट वाज द टाइम? लिटरली एग्जैक्टली 12 बजे बाहर मत निकलो बोलते हैं ना, इसलिए पूछा. एंड देन वी आर ड्राइविंग, कुछ भी नहीं दिख रहा था. कुछ भी नहीं दिख रहा था. एंड नेविगेशन वाज आल्सो टेकिंग इन द रूट्स दैट उसमें भी कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ पानी पे जो रिफ्लेक्शन दिखता है ना वो दिख रहा था. और मुझे पानी से ऑलरेडी बहुत डर लगता है. देन ड्राइविंग एंड हम अगेन एंड अगेन, मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन चल रही है कि somehow my car would skid and it would go into the water and then I won't die drowning, I would die of a heart attack of how scared I am of the water. अजीब अजीब चीजें इमेजिन कर रही हूँ मैं, that you know I will check the rear view mirror and something would be sitting behind me. ऐसे पानी घुस गया तो मैं दरवाजा कैसे खोलूंगी? वो सब तो फियर था ही नहीं. Just touching water at night when I can't see what's underneath it. What are the monsters lurking underwater? I know there are none. But इतना ज़्यादा डर गए थे मैं. Right in that moment, 12:05 हो रहे होंगे, it started raining cats and dogs. तो जितना भी कुछ
गाड़ी की लाइट से भी दिख रहा था ना, वो भी दिखना बंद हो गया. एंड आई वॉज शेकिंग. आई वॉज लाइक कैन वी गेट आउट ऑफ हियर, कैन वी गेट आउट ऑफ हियर. एंड आई वॉज ड्राइविंग. थैंक गॉड आई वॉज ड्राइविंग, क्योंकि अगर मैं बैठी होती ऐसे आइडल बैठी होती ना, अरे जल्दी जल्दी चला, जल्दी चला, तो वो स्टीयरिंग भी ऐसे करके साइड में कर दे, मतलब मेरे से नहीं हो रहा है. मुझे दैट्स व्हेन आई लर्नड अ लॉट अबाउट माई सेल्फ येस्टरडे, क्योंकि मुझे पता चला कि हाँ मेरे को इतना ज्यादा डर लग सकता है कुछ चीजों से जो वही फील नहीं होता ना डे टू डे लाइफ में. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड हिम टू सी ऑल्सो. बहुत इंटरेस्टिंग था कि आई कैन बी सच अ स्कैर्डी कैट. क्या पता चला कि 12 बजे गोवा के रास्तों से नहीं, फिर ये उसका भी अगेन हर चीज का एक प्लान बना लेना चाहिए, राइट? सो वी केम अप विद द प्लान कि यही रास्ते पे एक बार हम दिन में जाएंगे व्हेन इट्स ऑल ब्राइट, सो दैट वी गेट टू नो द वे. सो नेक्स्ट टाइम इफ वी गेट स्टक देयर वी विल बी ओके. यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, इंडियंस लोग काफी लोगों को नहीं आता है या नॉर्थ इंडियंस को नहीं सिखाते. कल परसों या मेट समबडी हु वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि जितने भी लोग दिल्ली और यहाँ सब से आते हैं ना, नो पेरेंट्स आर लाइक कि ठीक है स्विमिंग करके मतलब व्हाट इज दिस स्किल. नॉट इंडियंस ना, इंडियंस या ओवरऑल. No, but if you've grown up in a coastal city like Goa, Kerala, Bombay, all these like different parts of the country, Western Ghats, Eastern Ghats, and most people have come across no swimming. क्योंकि उनके ocean is so accessible also, right? Water is so accessible. दिल्ली में there's no water. There is a fear of like public speaking ना. Public speaking fear नहीं है क्योंकि ऑडियंस के सामने like the entire audience. हाँ, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत पसंद है. आप यू कैन सी इट राइट नाउ, राइट? एंड इफ आई हैव एन ऑडियंस एक्चुअली, मुझे याद है आई वाज लाइक 4-5 years old, तब से मैं अपने पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि लिसन, आई कीप इमेजिनिंग मी ऑन अ स्टेज विद 2000 people सिटिंग देयर लिसनिंग टू मी. ठीक है, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट इन माई जनरेशन, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, राइट? तो बचपन से बहुत अटेंशन मिला है मुझे. एवरीवन's अटेंशन, एक्सटेंडेड फैमिली का भी. एंड दे वुड कीनली, क्योंकि पहला बच्चा है तो दे वुड कीनली सिट एंड लिसन टू मी. तो इवन व्हेन आई वाज 3-4 years old, I would be like, is that, you know, hands throwing here and there, talking, all of that. तो public speaking का fear नहीं है. लेकिन recently I did an open mic which was very new to me, क्योंकि I don't write poetry or anything, but I had written spoken word poetry. उससे पिछली रात को ही लिखी थी. And then I went to attend an open mic. वहाँ पे organizer ने बोला, oh Ayushi, I know you from Instagram and all. Do you want to perform? And I don't know what took over me. I said yes instantly. And then when my turn came, I thought I'll be later in the list because I'm so last minute. I was the second one to perform. When they called me, I was like, me, right? I kept doing that. And then when I went up on the stage, my hands were like this. आप बहुत ध्यान से वो वीडियो देखोगे ना, आपको दिखेगा कि I'm shaking like this. क्योंकि वहाँ पे I didn't have fear of judgment or public speaking, but the fear of vulnerability. For the first time in my life, I was doing something so raw and open, talking about a poem which is so much about my heart and my feelings. So that vulnerability was giving me that shaking and goosebumps thing, but I loved it. I think that gave me even more courage. पहले मैं आपको बता रही थी ना कि अगर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ऐसी चीजें करो यार, हर चीज के लिए यस करो. उस समय बहुत डर लगेगा, बहुत ज्यादा, बट उसके बाद इट विल add to your, like आप level up हो जाओगे, पिकाचू से राइचू बन जाओगे आप all of a sudden. तो that's what you need. I think the topics you are confident enough ना, there you can go and talk. वो तो ठीक है, हाँ, that's not pushing you out of your comfort zone. वो होता था ना, ये I remember like 7th-8th standard में माइक के सामने बोलते जाओ कुछ अनाउंसमेंट या वो जनगण मन वाला रहता ना, जनगण मन का कुछ और ही हो. नहीं, बट स्कूल्स में एक्सटेम्पोर भी तो होते थे कि आपको उसी समय टॉपिक मिलेगा and you have to बड़बड़ about it. But then there are also students who are like confident enough, they'll participate. बाकी जो नहीं है वो participate नहीं करेंगे ना. हाँ, आपने देखा होगा डिबेट टीम्स और स्पीच टीम्स में हमेशा ये जो सुपर कॉन्फिडेंट बच्चे नहीं होते, सिर्फ वही होते थे. हाँ. और ज्ञानी वाले भी रहेंगे बट दे आर नॉट एबल टू टॉक, तो वो बैठ जाएंगे. भाई तू सही बोल रहा है. ये तो है जो अभी आपने बोला ना, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना तो एवरीवन विल थिंक आप सही बोल रहे हो. बस आपका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है. तो मैं अपने आप को ना बहुत सालों से एक्सपर्ट बुलशिटर बोलती हूँ कि मुझे कुछ थोड़ा सा पता चल गया किसी चीज़ के बारे में ना, देन उसके बारे में इतना कॉन्फिडेंटली बोलूँगी मैं, लोगों को लगता है कि मुझे एक्चुअल में आती है वो चीज़. And it works also ना in business और some talks and all, चल भी जाता है. Absolutely. यही चाहिए बिजनेस में. फोटो एडिटिंग का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा टर्म्स बोल दो, लाइक यू नो आई यूज कंटेंट अवेयर फील, इसको फील किया, यू नो ये वाला. नाइस नाइस फैंसी टर्म्स बोल दो बस. आज जितनी भी आप VFX की बातें कर रहे थे ना, वो मैंने पिकअप कर लिया है. नेक्स्ट टाइम कोई मुझसे पूछेगा, हाँ दीज सॉफ्टवेयर्स राइट.
Yeah, I have heard of Nuke, you know, Nuke और कौन सा Ryzen वाला बात कर रहे थे ना, Ryzen 3060. That's exactly what I will say. Oh, you're getting into graphics and VFX and all. You should get the Ryzen processor, even though I know nothing about it. वो बोलेगा 1600 लिया, नहीं 1600 नहीं, I think 3060 is better, you know. That's what I'll say, with all confidence. दो terms याद रख लो, Ryzen 7 3060 and you're done. Thank you.